بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله وسلم. علم سکون میں خوش آمدید. اگر آپ نے یہ چند لمحے کھو دیے تو شاید پوری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت آپ سے دور ہو جائے. یہ وہ بات ہے جو آنکھوں کو نہیں دلوں کو دکھائی دیتی ہے، اور جو اسے سن کر بھی نظر انداز کر دے وہ خود کو ہمیشہ کے لیے گم کر بیٹھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک سوال ہے جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. کیا واقعی اللہ ہم سے دور ہے، یا ہم ہی اس کے اتنے قریب آ کر بھی اسے پہچان نہ سکے؟ یہ سوال سادہ نہیں، یہ سوال آپ کی روح کو ہلا دینے والا ہے، کیونکہ اگر جواب سمجھ میں آ گیا تو زندگی بدل جائے گی. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اللہ کی تلاش جنگلوں میں کی جاتی ہے، پہاڑوں میں، غاروں میں، ریاضتوں میں، لمبے سجدوں میں، کسی کے ہاتھ پر بیعت، کسی کے نام پر امید. لیکن ایک لمحے کو رک کر سوچئے، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے اتنا بھاگنا کیوں پڑتا ہے؟ یہاں ایک ایسا راز ہے جسے جان لینا فرض ہے. تلاش اسی کی ہوتی ہے جو کھو گیا ہو. قرآن اعلان کرتا ہے کہ وہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر گم کون ہے؟ اللہ نہیں، انسان. انسان اس دنیا کے شور میں خود کو کھو بیٹھا ہے، خواہشوں، خوفوں اور مقابلوں میں. اسی لیے تصوف کا پہلا سبق اللہ کی تلاش نہیں بلکہ اپنی تلاش ہے. یہ جاننا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں لوٹ کر جانا ہے. حضرت علی کا وہ جملہ جو صدیوں سے دلوں کو چیرتا آیا ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہاں روح کانپتی ہے کیونکہ خود کو پہچاننا آسان نہیں. یہ آئینہ دکھاتا ہے گناہ، غرور، حسد اور خود پسندی. لیکن یہی پہچان قرب کی پہلی سیڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوں. وہ دل جو اپنے گناہوں کے بوجھ سے ٹوٹ چکا ہو، وہ دل جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا، وہی دل اللہ کا گھر بنتا ہے. ناظرین، قرب کا سفر باہر نہیں، اندر شروع ہوتا ہے. یہاں کتابیں کم، آنسو زیادہ بولتے ہیں. یہاں سجدہ صرف زمین پر نہیں، نفس پر بھی ہوتا ہے. اور جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ وہی ہے، تو پردے ہٹنے لگتے ہیں. دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک تڑپ، ایک پیاس، جو صرف اللہ کے حکم کو ماننے سے ہی بجھ سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے، یہ راستہ آسان نہیں. یہاں آزمائشیں ہیں، دل کی صفائی ہے اور نفس کی جنگ ہے. مگر جو اس دروازے تک آ گیا اس کے لیے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ اگلے لمحے وہ راز کھلنے والا ہے جو اللہ کے قرب کی اصل پہچان ہے. دل کی صفائی، قرب الہی کا پہلا امتحان. ناظرین، اللہ کا قرب کوئی تحفہ نہیں جو بغیر قیمت کے مل جائے. یہ سودا ہے، اور اس سودے میں سب سے پہلے جو چیز مانگی جاتی ہے وہ ہے دل کی صفائی. لیکن سوال یہ ہے کہ دل اتنا گندا کیسے ہو گیا؟ نماز پڑھتے ہوئے بھی دل بھٹکتا کیوں ہے؟ ذکر کرتے ہوئے بھی سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کے سوا سب کچھ آباد ہے. خواہشیں، نام، پہچان، تعریف، اور سب سے خطرناک چیز اپنی نیکی پر غرور. یہ وہ زہر ہے جو عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے. اللہ کو وہ دل پسند نہیں جو خود غرضی سے بھرا ہو. اللہ کو وہ دل پسند ہے جو خالی ہو، خالی صرف اس کے لیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، سوائے اس کے جو پاک دل لے کر آئے. یہ آیت صرف قیامت کے لیے نہیں، یہ قرب کے ہر لمحے کا قانون ہے. دل جتنا صاف، قرب اتنا قریب. لیکن دل کی صفائی آسان نہیں. جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کا اصل چہرہ دکھاتا ہے. اپنے اندر کی گندگی، چھپے ہوئے گناہ، وہ نیتیں جو کسی کو نظر نہیں آتی. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا خراب ہوں، اور یہی ٹوٹنا رحمت کی علامت ہے. اکثر لوگ یہاں غلطی کر بیٹھتے ہیں. وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے. یاد رکھیے، گناہ نظر آنا سزا نہیں، یہ دعوت ہے. دعوت توبہ، دعوت قرب. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے اور وہ سچے دن سے پلٹ آئے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے. یہی اللہ کی شان ہے، یہی اس کی رحمت کا دروازہ ہے. لیکن شرط ایک ہے، انکساری. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. یہاں نفس چیختا ہے، وہ کہتا ہے تم بہتر ہو، تم نیک ہو، تم دوسروں سے آگے ہو. اور یہی وہ آواز ہے جو قرب کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بنتی ہے. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں
कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए अपने नफ्स को ज़िबा करना पड़ता है। ज़ाहिरी नहीं, बातिनी कुर्बानी। ये रास्ता तकलीफ मांगता है, बदनामी भी, लोगों की बातें भी, अकेलापन भी। लेकिन जो अल्लाह की रजा देख लेता है, उसे दुनिया की कोई आवाज नहीं रोकती। वो जान लेता है कि तकलीफ कुर्ब की कीमत है, और ये कीमत सुस्ती नहीं। यही वो मकाम है जहां शैतान पूरी ताकत से हमला करता है। वसवसे, सुस्ती, दिल की सख्ती, और कभी कभी इबादत में भी लज्जत खत्म हो जाती है। ये आजमाइश है, ये देखने के लिए कि बंदा अल्लाह के लिए चल रहा है या अपने एहसास के लिए। और जो यहां साबित कदम रहा, जो आंसुओं के साथ भी सजदा न छोड़े, जो अंधेरे में भी अल्लाह को पुकारता रहे, उसके लिए अगला दरवाजा खुलता है। वो दरवाजा जहां अल्लाह कुर्ब की पहली झलक दिखाता है, एक ऐसी कैफियत जिसे लफ्ज बयान नहीं कर सकते। लेकिन उस कैफियत के साथ एक और राज भी जुड़ा है, ऐसा राज जो इंसान को बदल कर रख देता है। और वो राज अगले हिस्से में खुलने वाला है। अब मामला संजीदा हो चुका है। यहां से या तो इंसान बदल जाता है या हमेशा के लिए वहीं रुक जाता है। नाजरीन, अल्लाह का कुर्ब सिर्फ आंसुओं से नहीं मिलता, सिर्फ सजदों से नहीं मिलता। यहां एक जंग होती है, खामोश, खूनी और मुसलसल। ये जंग नफ्स के खिलाफ होती है, और जो इस जंग से भाग गया, वो चाहे उम्र भर इबादत करे, कुर्ब की खुशबू तक नहीं पा सकता। नफ्स एक अजीब दुश्मन है। ये सामने नहीं आता, ये नेकी के लिबास में आता है। ये आपको कहता है, आप खास हैं, आप चुने हुए हैं, आप दूसरों से बेहतर हैं। और जैसे ही ये एहसास दिल में बैठता है, कुर्ब का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। कुरान में नफ्स के बारे में फरमाया गया कि नफ्स बुराई का हुक्म देता है, लेकिन ये बुराई सिर्फ गुनाह नहीं, ये खुद पसंदी भी है, ये अपनी इबादत पर फख्र भी है, ये समझ लेना भी है कि मैं अल्लाह के करीब हूं। याद रखिए, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आप पहुंच गए हैं, उसी दिन आप गिरना शुरू हो जाते हैं। सूफिया किराम इसीलिए कहते हैं कि कुर्ब की सबसे बड़ी अलामत खुद को गुनाहगार समझना है। जितना कुर्ब बढ़ता है, उतनी ही अपनी कमजोरी नजर आती है, और जिसे अपनी कमजोरी नजर आ जाए, अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। यहां नफ्स मुजाहिमत करता है। वो कहता है, आराम करो, लोगों की तरह जियो, इतनी सख्ती की क्या जरूरत है। ये वसवसे हैं, ये रास्ते के कांटे हैं, और जो इन कांटों से ना गुजरा, वो फूल तक नहीं पहुंच सकता। हजरत हसन बसरी फरमाते थे कि नफ्स को लगाम डाले बगैर दिल में नूर नहीं उतरता। ये लगाम इबादत से नहीं, इनकिसारी से लगती है, खामोशी से, अपने आप को मिटाने से। यही वो मकाम है जहां इंसान तन्हा हो जाता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्त समझ नहीं पाते, घर वाले सवाल करते हैं, और दिल बार बार टूटता है। लेकिन अल्लाह इन्हीं टूटे दिलों में उतरता है। ये अल्लाह का वादा है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा नफलों के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। ये कुर्ब है, ये इख्तियार नहीं, ये अल्लाह का इंतखाब है। लेकिन इस इंतखाब से पहले नफ्स की गर्दन तोड़नी पड़ती है। ये कुर्बानी खून के बगैर नहीं होती। यहां ख्वाहिश मरती है, नाम मरता है, पहचान मरती है, और जब सब मर जाता है तो सिर्फ एक नाम बाकी रहता है, अल्लाह। इसी मकाम पर इंसान को एक अजीब सा सुकून मिलता है, तकलीफ में भी, तन्हाई में भी, और आंसू में भी। वो जान लेता है कि अल्लाह मेरे साथ है। फिर उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि दुनिया क्या कहती है। लेकिन याद रखिए, ये अभी सफर का इख्तिताम नहीं, ये तो आगाज है। क्योंकि जब नफ्स कमजोर होता है, तो दिल में नूर उतरने लगता है, और उस नूर के साथ एक ऐसी कैफियत आती है जो इंसान को इस दुनिया से ऊपर उठा देती है। वो कैफियत क्या है, वो नूर कैसा है, और वो लम्हा कब आता है जब दिल वाकई अल्लाह का घर बन जाता है। ये राज अगले हिस्से में खुलने वाला है। दिल पर उतरने वाला नूर, कुर्ब इलाही की पहली झलक। अब अल्फाज कांपने लगते हैं, क्योंकि ये वो मकाम है जहां बात सुनने की नहीं, महसूस करने की होती है। और अगर दिल जिंदा ना हो, तो ये हिस्सा दिल पर नहीं उतरता। नाजरीन, जब इंसान नफ्स की जंग में हिम्मत ना हारे, जब वो खुद को तोड़कर भी अल्लाह के दर पर खड़ा रहे, तो एक दिन अचानक कुछ बदल जाता है। कोई आवाज नहीं आती, कोई ऐलान नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर एक रोशनी जल उठती है। ये रोशनी चिराग की नहीं, ये नूर इलाही की झलक होती है। ये वो लम्हा है जब इबादत बोझ नहीं रहती,
नमाज फर्ज नहीं लगती, जिक्र जबान का काम नहीं रहता, दिल खुद बोलने लगता है और आंखें बगैर इजाजत भीग जाती हैं। ये कैफियत हर एक को नहीं मिलती, ये अल्लाह का खास करम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की तरफ हिदायत देता है। ये नूर इल्म नहीं, ये नूर डिग्री नहीं, ये नूर वो है जो दिल को जिंदा कर देता है, और जिंदा दिल ही अल्लाह को पहचानता है। यहाँ एक बहुत नाजुक राज है। इस नूर के आते ही इंसान को लगता है कि शायद वो पहुंच गया है, और यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर इस लम्हे शुक्र न हो, अगर आजिज़ी न हो, तो यही नूर आजमाइश बन जाता है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि नूर आए तो सजदा बढ़ा दो, आंसू आए तो खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि हर कैफियत अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। कुछ लोग कैफियत के पीछे भागते हैं और अल्लाह को खो बैठते हैं। समझदार वो है जो कैफियत में भी अल्लाह को न छोड़े। ये नूर दिल में उतरता है तो गुनाह का ज़ौक़ खत्म होने लगता है। नफ्स अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहता। दिल को दुनिया की चीजें खींचती हैं मगर जकड़ नहीं पाती। एक अजीब सी आज़ादी मिलती है, जैसे रूह किसी कैद से निकल आई हो। इसी मकाम पर इंसान तन्हाई से डरना छोड़ देता है, क्योंकि अब तन्हाई में कोई और होता है, वही जो रगे जान से भी करीब है, वही जो सजदों में बातें सुनता है, वही जो आंसुओं की जबान समझता है। हदीस में आता है कि अल्लाह बंदे के दिल को देखता है, उसके अमल को नहीं, उसकी सूरत को नहीं। जब दिल साफ हो जाए तो अमल खुद संवर जाता है। यही वजह है कि दिल की इस्लाह को बुनियाद बनाया गया। लेकिन नाजरीन, ये नूर आखिरी मंजिल नहीं, ये तो पहला दरवाजा है। इसके बाद रास्ता और भी नाजुक हो जाता है, क्योंकि अब इंसान को अल्लाह की कुर्बत के साथ दर्द भी मिलता है। एक ऐसा दर्द जो आम इंसान नहीं समझ सकता। ये दर्द फिराक का होता है, मजीद कुर्ब की तलब का होता है। दिल बेचैन रहता है, दुनिया में रहते हुए दिल कहीं और लगा रहता है। ये कैफियत खतरनाक भी है और कीमती भी। यहाँ बहुत से लोग ठहर जाते हैं कैफियत में, लज्जत में, और आगे नहीं बढ़ते। मगर जो आगे बढ़ गया, उसके लिए अल्लाह एक और पर्दा उठाता है, ऐसा पर्दा जिसके बाद इंसान खुद को नहीं देखता। वो पर्दा क्या है? वो दर्द कैसा है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है, और क्यों यही दर्द असल कुर्ब की निशानी है? ये राज अगले हिस्से में खुलने वाला है। दर्द फिराक, कुर्ब इलाही की सबसे भारी कीमत। अब ये सफर आम नहीं रहा। यहाँ मुस्कुराहट कम और आंसू मुस्तकिल हो जाते हैं। और अगर आप इस मकाम को ना समझे तो कुर्ब की असल हकीकत आपसे छुपी रह जाएगी। नाजरीन, जब दिल पर नूर उतर जाता है, जब इंसान अल्लाह की कुर्बत को चख लेता है, तो उसके बाद एक अजीब दर्द शुरू होता है। ये दर्द गुनाह का नहीं होता, ये दर्द दुनिया का नहीं होता, ये दर्द फिराक का होता है, मजीद कुर्ब की तलब का दर्द। ये वो कैफियत है जिसमें दिल अल्लाह के बगैर अधूरा महसूस करता है। इबादत के बाद भी तिश्नगी रहती है, जिक्र के बाद भी प्यास बाकी रहती है। आंखें बंद हों तो दिल अल्लाह को याद करता है, आंखें खुलें तो दुनिया अजनबी लगती है। यहाँ बहुत से लोग घबरा जाते हैं। वो समझते हैं शायद हम गलत रास्ते पर हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। ये दर्द इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने बंदे को अपने करीब बुला लिया है। ये दर्द दावत है, सजा नहीं। हजरत राबिया बसरी फरमाया करती थी कि मैं अल्लाह की इबादत जन्नत के लालच में नहीं करती और ना जहन्नम के खौफ से। मैं तो अल्लाह को इसलिए चाहती हूँ कि वो चाहे जाने के काबिल है। यही इश्क है। और इश्क सुकून नहीं मांगता, इश्क जलना मांगता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ये शदीद मोहब्बत दिल को बेचैन कर देती है। ये वो मोहब्बत है जो इंसान को दुनिया में रहते हुए दुनिया से आज़ाद कर देती है। इस मकाम पर दर्द इबादत बन जाता है, खामोशी जिक्र बन जाती है और आंसू दुआ बन जाते हैं। इंसान लोगों के दरमियान होता है, लेकिन दिल कहीं और होता है। वो हंसता है मगर अंदर कोई और बात चल रही होती है। यहां नफ्स आखिरी बार करता है। वो कहता है, लोगों को बताओ कि तुम क्या हो, अपनी कैफियत जाहिर करो, अपना मकाम जताओ। और यही वो लम्हा है जहां बड़े बड़े गिर जाते हैं। अल्लाह अपने खास बंदों को गुमनामी में रखता है, दर्द देता है लेकिन नाम नहीं देता, क्योंकि अगर नाम मिल जाए तो इखलास मर जाता है, और अल्लाह इखलास के सिवा कुछ कबूल नहीं करता। हदीस में आता है कि अल्लाह ने कुछ बंदे ऐसे रखे हैं जो अगर कसम खा लें तो अल्लाह पूरी कर दे, मगर वो खुद को कुछ नहीं समझते। यही कुर्ब की मेराज है। इस दर्द के साथ इंसान को आजमाइशें भी मिलती हैं, बीमारी,
नुकसान, तन्हाई, लोगों की बेरुखी। लेकिन अब ये सब दिल को तोड़ नहीं पाते, क्योंकि दिल ने सीख लिया होता है कि असल सहारा कौन है। यहाँ इंसान जान लेता है कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं, और जब ये बात दिल में बैठ जाए तो खौफ खत्म हो जाता है। मौत भी करीब लगने लगती है, क्योंकि महबूब से मुलाकात का ख्याल डर को जला देता है। लेकिन नाजरीन, ये अभी आखिरी मकाम नहीं, ये तो वो दरवाजा है जहां से फना का रास्ता शुरू होता है, अपनी जात को मिटाने का रास्ता। वो मकाम जहां इंसान कहता है मैं नहीं, सब तो है। ये वो नुक्ता है जहां ज्यादा लोग रुक जाते हैं, और जो आगे बढ़ गया उसके लिए अल्लाह एक ऐसा राज खोलता है जो सुनकर दिल लरज उठता है। वो राज क्या है? फना का मतलब क्या है? और फना के बाद क्या वाकई बका मिलती है? ये सब आखिरी हिस्से में खुलने वाला है। अब अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये वो मकाम है जहां इंसान खत्म होता है और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। अगर ये बात दिल में उतर गई तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। नाजरीन, फना का मतलब मर जाना नहीं होता। फना का मतलब है अपनी झूठी पहचान का मर जाना, अपने गुरूर का, अपनी अना का, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी बड़ाई के ख्याल का मर जाना। ये वो मौत है जो जिंदा रहते हुए आती है, और जो उस मौत को पाले उस पर कभी असल मौत खौफनाक नहीं रहती। जब बंदा फना के दरवाजे तक पहुंचता है तो सबसे पहले ये एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं था। न मेरी इबादत मेरी थी, न मेरी नेकी मेरी थी, न मेरा इल्म मेरा था। सब कुछ उसी का था, और ये मान लेना कुर्ब की सबसे बड़ी कुंजी है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि फना ये है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने बिल्कुल गायब कर दे। न दावा, न शिकायत, न सवाल, सिर्फ रजा। और जब रजा आ जाती है तो दिल जन्नत से ज्यादा कीमती बन जाता है। यही वो मकाम है जिसे फना फिल्लाह कहा जाता है, जहां इंसान कहता है मैं नहीं हूं, सिर्फ तू है। और यही वो लम्हा है जहां अल्लाह बका अता करता है। बका बिल्लाह। बका का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे। बका का मतलब ये है कि इंसान दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया उसके दिल में ना रहे। वो खाता है, पीता है, चलता है, बात करता है, लेकिन दिल हर वक्त अल्लाह के साथ होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के लिए है वही बाकी रहने वाला है। सब कुछ फना होने वाला है सिवाय उसकी जात के। और जो बंदा अपनी जात को उसकी जात में गुम कर दे वो भी फना के बाद बका पा लेता है। यही वो राज है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। वो समझते हैं कि अल्लाह का कुर्ब किसी खास लिबास से मिलता है, किसी खास जगह से मिलता है। हालांकि कुर्ब एक हाल है, दिल की हालत। इस मकाम पर बंदा खामोश हो जाता है। वो कम बोलता है, कम दिखाता है, ज्यादा छुपाता है, क्योंकि जो देख लेता है वो बताने का मोहताज नहीं रहता। अल्लाह ऐसे बंदों को लोगों के लिए रहमत बना देता है। उनकी मौजूदगी सुकून बन जाती है, उनकी दुआ असर बन जाती है, और उनका नाम मिट जाता है मगर काम जिंदा रहता है। यही वो लोग होते हैं जो दुनिया में रहकर आखिरत कमा लेते हैं, जिनके लिए मौत इख्तिताम नहीं बल्कि मुलाकात होती है, और जिनकी कब्रें अंधेरे की नहीं नूर की जगह बनती हैं। नाजरीन, अल्लाह का कुर्ब कोई कहानी नहीं, ये एक सफर है जो नफ्स से शुरू होकर दिल तक आता है और दिल से अल्लाह तक पहुंचता है। लेकिन शर्त वही है जो इब्तिदा में थी, खुद को कुछ न समझना। अगर आज आपके दिल में यह ख्वाहिश जाग गई है कि अल्लाह मेरा हो जाए, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको बुला लिया है। अब पीछे मत हटिए, क्योंकि ये बुलावा बार बार नहीं आता। यही वो लम्हा है जहां इंसान को फैसला करना होता है, दुनिया या अल्लाह, नाम या रजा, मैं या वो। और जो इस लम्हे अल्लाह को चुन ले वो कभी हारता नहीं। या अल्लाह, हमें अपने कुर्ब की प्यास दे, हमें अपने नूर में जिंदा कर दे, हमें अपने रास्ते पर साबित कदम रख, और हमारी रूह को हमेशा तेरी मोहब्बत से मामूर फरमा।